And further, the Director General of Training has introduced new trades like drone pilot, corporation and management, and solar electricity, etc. Thank you. Honorable Speaker Ma'am, as we all know that improvement in defense is very essential for us as it comprises the national security of our country. So, in this regard, I would like the Defense Minister be pleased to state that whether the expenditure on defense has never been near 3% of gross domestic product (GDP) during the last 3 years. Raksha Mantri ji. Honorable Speaker Ma'am, all the details regarding defense expenditure, GDP, defense expenditure as a percentage of GDP are provided to all the members of Parliament. Ma'am, defense expenditure is increasing every year in absolute terms, implying higher spending. From 2016-17 to 2019-20, expenditure on defense has increased by Rs 90,089 crore. Now, measuring defense expenditure as a percentage of GDP creates an illusion of declined spending by ignoring the size of economy. But it doesn't mean that the level of spending has fallen or has become inadequate. Now, I would like to further add that for the year 2019-20, the total defense budget, including civils and pensions, is Rs 4,31,010.79 crore. Also, capital budget of Ministry of Defense for the year 2019-20 is approximately 31.97% of the total capital expenditure of the central government. Now, I would like to aware the House that our government is very sincere and serious about this matter, and we are trying our best to ensure national security of our country. प्रश्न संख्या 104 माननीय निहारिका जी. Honorable Speaker Ma'am, as we all know that water scarcity is a huge problem in India. Many of the states, people and even children are affected by it. If we see the data of last year, we will find that many of the people died only because of the problem of water scarcity. So, my question is for Jal Shakti, and the question is the details of the schemes being run by the government to remove the problem of water scarcity. Thank you. माननीय जल शक्ति विभाग मंत्री जी. Honorable Speaker Ma'am, water is being a state subject. Steps to remove problem of water scarcity are primarily undertaken by respective state government. In order to supplement the efforts of the state government, central government provides technical and financial assistance to them through various schemes and programs. Thank you. Supplementary question माननीय अंजलि जी. माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे देश में जल शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमारे देश में अशुद्ध जल की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. तो मेरा प्रश्न जल शक्ति मंत्री जी से यह है कि क्या हमारे देश की सरकार ने पेयजल शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई ठोस प्रयास किए हैं, और अगर किए भी हैं तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? कृपया स्पष्ट कीजिए. धन्यवाद. माननीय लोकेश जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद के पूछे गए प्रश्न के उत्तर को समस्त सदन से अवगत कराना चाहूँगा. जैसा कि इनका प्रश्न है कि क्या हमारा मंत्रालय पेयजल सुरक्षित करने के कुछ उपाय करता है, तो हाँ, हमने ऐसे कई उपाय किए हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा. जैसे कि हमारा मंत्रालय ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है. NRDWP के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में राज्यवार जारी की गई
वाली नीतियों का ब्यौरा आपके पटल पर रख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विभिन्न हमारे मंत्रालय द्वारा विभिन्न फ्लोराइड प्रभावित राज्यों में नीति आयोग की सिफारिश से 1000 करोड़ रुपयों की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा हमारे मंत्रालय ने विभिन्न 27,544 राज्यों में 27,544 राज्यों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए NRDWP के अंतर्गत 22 मार्च 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मिशन की शुरुआत की गई। इससे जल के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की संख्या में बहुत कमी आई है। बहुत कमी ही क्या, वो बेहद ही समाप्त हो गई और हमारे इस कदम से जनता बेहद खुश है। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन माननीय रूपा आर्या जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल एक दुर्लभ तथा अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या जल शक्ति मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जल के विभिन्न स्रोतों का समुचित संरक्षण किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय अंकित जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इस प्रश्न के उत्तर से अवगत कराना चाहूंगा। सुरक्षित पेयजल स्रोतों को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा कवरेज निधियों के 15% तक का उपयोग जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग एवं सुरक्षा कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है। महोदय, साथ ही हम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधियों की 10% तक का उपयोग जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना करने व मौजूदा प्रयोगशालाओं में सुधार कार्य करने हेतु प्रयोग में ला रहे हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 माननीय करण आर्या जी। माननीय महोदय, सबसे पहले तो हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमको हमारा सवाल पूछने का मौका दिए हैं। इसलिए आपके माध्यम से हमारा माननीय MSME मंत्री जी से यही सवाल है कि जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, बुझ रहे हैं ना, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हड्डी। यह हम सभा के सभी लोगों को बताना चाहते हैं और माननीय MSME मंत्री जी हमका यही बताने की कृपा करे कि ये सरकार उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। काहे कि उद्योग लगेगा तभी तो रोजगार मिलेगा ना। हमारा बच्चा युवा ये कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा ये बच्चा युवा? कृपया करके बताने की कृपा कीजिए। माननीय MSME मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा समस्त सदन को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय यानी MSME अपने अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों का पूर्ण रूप से ध्यान देता है और देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर ऐसी नीतियां, कार्यक्रम व योजनाएं लागू करता है जो इनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, सूक्ष्म और लघु मध्य उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के लिए निधि योजना, स्फूर्ति और खरीद योजना और सार्वजनिक खरीद नीति शामिल है। माननीय महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा मंत्रालय इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि हमारे द्वारा लागू की गई सभी नीतियां पूर्ण रूप से सफल हो और हमारे द्वारा लागू की गई सभी नीतियों की सफलता हमारे मंत्रालय की सफलता है। माननीय महोदय, हमारा मंत्रालय इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि हमारे द्वारा लागू की गई सभी नीतियों का लाभ न्याय संगत हो, जिससे देश के छोटे बड़े सभी उद्योगों का निरंतर विकास हुआ है। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन माननीय राहुल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सत्ताधारी सरकार से सवाल करने का मौका दिया। कृपया माननीय MSME मंत्री हमें यह बताने का कष्ट करें कि सरकार द्वारा MSME क्षेत्रों को और मजबूत करने के लिए अपनाए गए उपायों से MSME के विकास में धीरे धीरे वृद्धि आई है। अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और MSME के उद्देश्य तथा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या क्या हैं। माननीय गौरव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता आई है तथा इससे
एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इससे बहुत सारे अन्य लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। सीएसओ से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 में एमएसएमई की हिस्सेदारी 31.8% थी और वर्ष 2018-19 में बढ़कर यह हिस्सेदारी 48.10% हो गई। एनएसएसओ के अनुसार वर्ष 2016-17 में एमएसएमई क्षेत्र में नियोजित लोगों की संख्या 11.10 करोड़ थी। महोदय, अब मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के मध्य सृजित अनुमानित रोजगार 3.58 लाख से बढ़कर 5.87 लाख हुआ है। जी हाँ, 5.87 लाख। इससे संबंधित जानकारी व आंकड़ों को सदन के पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 माननीय लक्ष्मी निवास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मेरा प्रश्न रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक काफी गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, प्रत्येक वर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में दिल्ली में स्मॉग के कारण वहाँ का पर्यावरण में काफी नुकसान होता है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। महोदय, उस स्थिति को एक बार सोचें जहाँ पे लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। तो महोदय, मेरा प्रश्न सरकार से यह है कि इस साल इससे बचने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सरकार की तरफ से इस प्रश्न के माध्यम से अपने विपक्षी सहपाठियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर को पूरे सदन से अवगत कराना चाहूंगा। हमारी सरकार द्वारा निजी डीजल चलित वाहनों को 2022 तक पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा तथा उनकी जगह पर हम बिजली चलित तथा सीएनजी चलित वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम पॉलीथीन जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धुआं वायु में मिलता है तथा वायु को प्रदूषित करता है। इसलिए हमने दिल्ली इलाकों में या उन इलाकों में जहां पर बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है वहां पर पॉलीथीन को बैन कर दिया जाएगा तथा वहां जैविक बैगों का उपयोग करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं जब गाड़ियां सड़कों पर गुजरती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धूलकण हवा में उड़ते हैं। यह धूलकण भी हवा को प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि हम दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव करेंगे। हम देखते हैं जब मिलों से धुआं निकलता है वह मिलों का धुआं हवा में मिलकर हवा को वायु को प्रदूषण करता है। इसलिए हमने यह निर्देश जारी किए हैं कि मिल मालिक 2022 तक अपने मिलों पर प्यूरिफायर लगवा दें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा मैंने आपके बीच में बोला, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह याद दिला देना चाहता हूँ कि भारत में पहले से ही पानी की काफी समस्या है। कई स्थानों पर तो लोग पानी के लिए एक दूसरे को जान से मारने तक तैयार हो जाते हैं और आप दिल्ली की सड़कों पर पानी के छिड़काव करने की बात कर रहे हैं। और तो और माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वे मिलों पर धुएं को साफ करने के लिए प्यूरिफायर लगाएंगे। तो क्या इस वर्ष दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा? माननीय महोदया, मैं अपने विपक्षी मित्र को दिल्ली की सड़कों पर छिड़कने के लिए करने वाले हैं वह या तो लोगों के घरों से निकला हुआ अनुपयोगी पानी या फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा पानी होगा जिसका हम पुनः चक्रण करके दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव के लिए उपयोग करेंगे। जैसा कि माननीय राहुल जी ने पूछा कि हम मिलों पर प्यूरिफायर इतनी जल्दी कैसे लगवाएंगे, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि हमने हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देशों में हमने यह बताया था कि हर मिल मालिक अपने स्तर पर जल्द से जल्द प्यूरिफायर लगवा दें, वरना उन पर निर्देश का उल्लंघन करने के जुर्म पर बहुत भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 107 माननीय नितिन पांडे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान सांसदों को भी मालूम है कि पलायन हमारे देश की एक बड़ी और एक गंभीर समस्या है। लगभग आधे प्रतिशत घरों में ताले लग चुके हैं। कई घरों में लोग तो हैं पर अधिकतर बुजुर्ग लोग। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस समस्त सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खंड डी और ई के अंतर्गत सभी भारतीयों को मुक्त प्रवास का अधिकार प्राप्त है। इससे कोई भी भारतीय समस्त भारत में प्रवास कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवास संबंधी जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा विपक्ष के सदस्यों से यह अनुरोध रहेगा, कृपया कर उस रिपोर्ट को पुनः पढ़ें। रिपोर्ट की शुरुआत की 3 लाइनें पढ़ के यह सवाल न उठाएं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत में अधिकतर प्रवास आंतरिक प्रवास होता है, जिसमें से 46% प्रवास सिर्फ वैवाहिक कारणों से होता है। रोजगार के कारण 10% प्रवास और शिक्षा के कारण 1.2% प्रवास होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी अन्य प्रवास अन्य कारणों से होते हैं। मैं यह समझता हूं, यदि किसी व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए कोई बहुत अच्छा अवसर किसी दूसरे स्थान पर प्राप्त होता है, तो उसे उस अवसर को प्राप्त करने के लिए प्रवास करना चाहिए। प्रवास कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में बाह्य प्रवास उतना अधिक नहीं है जितना आंतरिक प्रवास है, और वो 58% तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उत्तराखंड में बाह्य प्रवास को रोकने के लिए रोजगार और शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार और शिक्षा उसी के घर के आसपास मिल जाएगा, तो वो प्रवास करेगा ही नहीं। और हमने उत्तराखंड में रोजगार मुहैया कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं, और लगे हाथ हमने रोजगार संबंधी ऋण भी दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रवास को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिशों से बाहर प्रवास में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। धन्यवाद। Now question hour is over. No more supplementary please. 0 hour start now. माननीय करण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 6वें पायदान पर थी। महोदय, 6वें पायदान पर, जो आज एक पायदान फिसलकर विश्व के 7वें पायदान पर पहुंच चुकी है। तथा सरकार ने हाल ही में आरबीआई के लाभांश से 1.76 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर दौर से गुजर रही है। अतः माननीय वित्त मंत्री जी का इस बारे में क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से माननीय करण जी के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ना कभी हाथ में हाथ धरे बैठी थी और ना ही बैठेगी। आरबीआई बोर्ड ने बीमा चालान समिति की सिफारिश पर सरकार के उक्त लाभांश और सरप्लस फंड से 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। आरबीआई के पास 9 लाख करोड़ रुपयों का सरप्लस फंड है। यह आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों का 28% है। विश्व के बड़े देशों के केंद्रीय बैंक तो कुल परिसंपत्तियों का केवल 14% स्वयं में पा सकते हैं। वह शेष धन सरकार को दिया जाता है। हम 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन, जी हाँ, $5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध व दृढ़ संकल्पित है, और हमारी मंशा पर शंका नहीं होनी चाहिए। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 2 लाख लोगों की मृत्यु इसी कारण से होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पर्यावरण मंत्री से यह है कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में क्या-क्या कदम उठाए जाए? माननीय पर्यावरण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस समस्या से अवगत है और इस पर अभी कार्य कर रही है। हमने इस वर्ष जनवरी माह में नेशनल ग्रीन ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक भारत
जैसा कि हम सभी जानते हैं, वायु हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना प्राणी जीवन संभव नहीं है। तो इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री जी हमें यह बताने की कृपा